Okay, we'll start with example 4.10. A uniform wooden plank of mass 30 kg is supported symmetrically by two light identical cables. Each can sustain a tension of up to 500 Newton. After tying, the cables are exactly vertical and are separated by 2 meters. A boy of mass 50 kilograms standing at the center of the plank is interested in walking on the plank. How far he can walk? So question is इंटरेस्टिंग. हमारे पास एक वुडन प्लैंक है. वुडन प्लैंक मतलब एक लकड़ी का बेसिकली कैन से what do you use something like a piece of ply ना, लकड़ी का बेंच का जो ऊपर का डेस्क होता है ना आपका, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. और उस वुडन प्लैंक को हमने दो रस्सी से बांध के रखा है एंड ईच ऑफ दीज टू कैन सस्टेन a maximum tension of 500 न्यूटन. ये दोनों वायर्स जो है दे आर 2 मीटर अपार्ट. वुडन प्लैंक का जो मास था 30 किलोग्राम है. अगर आप जी से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 न्यूटन का वेट है. सेंटर में बताया है 300 न्यूटन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. और इनिशियली जो बॉय था वो सेंटर पे था. बाद में he decides to walk. He is interested in walking. How far he can walk? How far he can walk के दो मतलब होते हैं. एक कि वो जो रस्सी है वो टूटना नहीं चाहिए, राइट. दूसरा, जो वुडन प्लैंक है ये रोटेट नहीं होना चाहिए. क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, हमने देखा था वी हैव लर्नड अबाउट टॉर्क. सो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन हियर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वायर बीइंग, जो रस्सी है वो टूट जाएगा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लैंक not to go in rotational motion. Okay, so that is the idea here. तो how to solve this question? सबसे पहले हमको ये पता है कि अगर दो रस्सी, टू स्ट्रिंग्स, टू केबल्स, इफ दे आर 2 मीटर अपार्ट तो सेंटर से 1 मीटर ईच. ऑलरेडी डायग्राम में बताया है यहाँ पे. लेट अस से द बॉय कैन वॉक अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर. तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया, सॉरी, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 1 plus x from one end, right. Okay, then टेंशन आपको हमको टेंशन दिया ही है. टेंशन लेट अस से जस्ट लेट अस गिव नेम्स. सो लेट T1 and T2 be the tensions in the string or in the cables. Be the tensions in the cable. Tension in the cables is a better word to use, right. And what we know is T1 equal to T2 equal to 500 Newton. This is what we know. Just a minute. Right. Good. What else do we know? ये जो tension है T1 and T2, they are acting vertically up, and weight of the plank and weight of the boy, they are acting vertically down. So basically these two tensions are balancing. They are balancing weight of the plank and weight of the boy, right. So since T1 and T2 act vertically upwards and weight of boy and the plank act vertically downwards, therefore what we can write is T1 plus T2
they balance weight of the boy, मतलब mass of the boy into g plus mass of the plank into g. So that is T1 plus T2 equal to mass of boy was 50 and g value is 10, so 500 plus 300. मतलब what we know is T1 plus T2 is equal to 800. ओके, वो हमको यूज आएगा नहीं आएगा हम लोग बाद में देखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन एटलीस्ट वी शुड राइट दिस. हाउ फार द बॉय कैन वॉक, how far the boy can walk? The boy can walk only up to the point where moments they balance. मतलब क्या? If you notice this, ये जो प्लैंक है इस पे दो फोर्सेस अपवर्ड्स है और दो डाउनवर्ड्स, इसलिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पे. और ये चारों के चारों फोर्सेस दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स. इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली there are four moment of forces acting, so there are four torques acting, and you know torques are responsible for rotational motion. Okay, right. So for equilibrium, equilibrium मतलब बैलेंस करने के लिए, मतलब वो प्लैंक रोटेट नहीं होने के लिए. फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर which equilibrium? Rotational equilibrium, of course. So here we are talking about for rotational equilibrium. Rotational equilibrium मतलब moment of force will balance. मैं लिख देता हूँ चाहिए तो. So rotational equilibrium, moment of forces are balanced. Okay, so for rotational equilibrium what we can write is, I will give some names to this. मैं बोलूँगा this is cable 1, C1, cable 2, और plank तो पता है and boy भी है वहाँ पे. So what I will write, torque due to cable 1 plus torque due to cable 2 is equal to torque due to plank plus torque due to boy. वो T1 plus due to टेंशन है, टेंशन फोर्स होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस व्हिच प्रोड्यूसेस रोटेशनल और टर्निंग इफेक्ट. How far a boy can walk? The boy can only walk up to a point up to which rotational equilibrium is maintained. मतलब ये जो चार मोमेंट ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, या फिर दो कपल भी बोल सकते हो आप इसको. एनीवेज, दो कपल नहीं हो सकते क्योंकि ओनली टू, यू नीड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ये जो चार मोमेंट ऑफ फोर्सेस है उसमें से दो अपवर्ड है दो डाउनवर्ड है, ये बैलेंस होने चाहिए. ओनली अप टू दैट पॉइंट अ बॉय कैन वॉक. तो टॉर्क ड्यू टू केबल 1 एंड टॉर्क ड्यू टू केबल 2 दे आर सेम, राइट? यू ऑलरेडी नो दैट. बट torque due to cable 1 is equal to torque due to cable 2. Why they are equal? They are equal. Okay, to make it more simple, they are equal because the tensions are the same here. And anyways, मैं ऐसा कर सकता हूँ to reduce one step. चलो ठीक है, just leave it like this. So you will have this to be 2 into 500. 2 into 500 कैसे आया वो बताता हूँ आगे मैं आपको. टॉर्क ड्यू टू प्लैंक, कभी भी याद रखना सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो, अगर, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दिस केस, अगर हमारे पास एक वुडन प्लैंक है उस पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो mg ऑलवेज एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ द प्लैंक. ओके, एंड व्हाट इज टॉर्क? फोर्स इनटू डिस्टेंस. व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स बाय द वे? फोर्स इज 300 न्यूटन. डिस्टेंस कितना? 1 फ्रॉम ईदर साइड. सेंटर में तो एक, दोनों साइड से एक एक का डिस्टेंस है, प्लस टॉर्क ड्यू टू बॉय. बॉय का वेट कितना? 500, और बॉय का डिस्टेंस कितना?
from one end 1 plus x, right? Okay, so you will get this is to be 1000, 300 plus 500 into 1 plus x, तो ये आ गया आपका बेसिकली 700 by 500 इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो 7/5, तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 7/5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 2/5 एंड 2/5 इज 0.4, तो आंसर शुड बी 0.4 मीटर। राइट, आई एम वेरी श्योर कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन होगा दिस स्टेप, ये कैसे आया। ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो, राइट, बट 2 into 500 कैसे आया, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा नहीं है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव रिटन दीज 3 स्टेप्स। राइट, तो मैं वापस एज आई टोल्ड यू अर्लियर that I will give you few minutes to understand and then I will go to method 2. ये same ही method है, there will be only slight change in the way I am writing. Okay, all right, so this type of writing is wrong writing, this type of I mean जब आप solution लिखते हो तो it will definitely create confusion, तो कहाँ हमको change करना है, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज जब रोटेशनल मोशन की बात होती है और जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात होती है, तो सबसे पहले अगर आप इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से रोटेशन की बात कर रहे हो, मतलब आप बात कर रहे हो मोमेंट ऑफ अ फोर्स की, नॉट मोमेंट ऑफ अ कपल। अच्छे से समझ लेना ये चीज, किसी भी बुक में अच्छे से समझाया नहीं है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू ईच फोर्स सेपरेटली, इंडिविजुअली हर एक फोर्स रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। ओके, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ अ कपल हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कपल की बात नहीं हो ही नहीं सकती कपल की बात। क्यों, कपल के लिए दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए, यहाँ पे नहीं है। T1 T2 इक्वल है लेकिन अपोजिट नहीं है, 300 न्यूटन 500 न्यूटन सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, यू कैन नॉट डू दैट, आप बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहला असेंशन आपको लेना पड़ता है कि लेट द बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईदर लेफ्ट एंड और राइट हैंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट, आपका सोचने से स्टार्ट होना चाहिए, लेट द बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स राइट एंड, क्योंकि डायग्राम में राइट एंड दिखाया है तो राइट एंड। ओके, राइट, he can walk maximum up to a distance x, हमने ऑलरेडी लिखा है, तो मैं वापस से मेंशन नहीं करूंगा। अब क्या होगा, अगर ये राइट एंड की तरफ जा रहा है तो टेंशन T2 जो है, केबल 2 में जो टेंशन है, दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, टेंशन T2 इन केबल C2, केबल 2 गोज ऑन इंक्रीजिंग, और जो केबल 1 है जिसमें टेंशन T1 था, इट विल एक्ट एज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिकॉज axis of rotation will pass through it. How can I show you? समझ लो ये आपका वो वुडन प्लैंक है, दिस पर्टिकुलर थिंग। तो एक जैसे जैसे the boy is trying to walk towards the right end, then because of the forces, because of the moment of forces, there will be rotation, and one of the end of the plank will act as axis of rotation. So your axis of rotation will be something like this, something like this. Okay, so this will be your axis of rotation. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इसका मतलब जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे
वो इस एंड से करेंगे और इस एंड को मैं नाम दे देता हूँ ए। ओके, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए वॉट एवर डिस्टेंस वी विल बी मेजरिंग विल बी मेजर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बिकॉज द बॉय स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द राइट। उल्टा होता है, द बॉय स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आप सब कुछ राइट से मेजर करते हैं। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ओके, तो सपोज द बॉय कैन वॉक maximum up to a distance x, therefore of course towards right, मैंने वो ऑलरेडी लिखा है, तो towards right end, therefore left end A serves as rotational axis, ये important है। therefore moments of 500 Newton and 300 Newton which are clockwise, नीचे मतलब clockwise, which are clockwise must balance moment of 500 Newton due to tension in cable 2 which is anti-clockwise। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको रोटेशन नहीं होने देना, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोमेंट ऑफ अ फोर्स, नॉट कपल, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, तो अपोजिट फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाउ फार अ बॉय कैन वॉक, इसका मतलब उनका बोलने का मतलब ये था कितनी दूर तक वो बॉय जा सकता है विदाउट मेकिंग द प्लैंक रोटेट। इसका मतलब ये है कि टॉर्क ड्यू टू केबल 2 is balanced by torque due to plank plus torque due to buoy। टॉर्क ड्यू टू केबल 1 हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि केबल 1 का जो एंड है, लेफ्ट एंड जो है, इट इज एक्टिंग एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये इट्स नॉट रॉकेट साइंस। आपको जैसे अगर आप राइट एंड की तरफ जाओगे तो राइट साइड में फोर्स बढ़ रहा है, डाउनवर्ड फोर्स, तो द प्लैंक विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट विच एंड, अबाउट लेफ्ट एंड। अगर लेफ्ट एंड में की तरफ लड़का जा रहा होता तो राइट एंड वुड सर्व एज रोटेशनल एक्सिस, सिंपल था। तो टॉर्क ड्यू टू केबल 2 को पता है, टॉर्क कैसे करते हो आप, फोर्स इनटू डिस्टेंस ना, फोर्स, तो टेंशन इन द केबल 2 इनटू डिस्टेंस, ओके। तो टेंशन इन द केबल 2 कितना है, 500, डिस्टेंस कितना है उसका, 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो 2 मीटर, इसलिए 500 इंटू 2 आया था, इक्वल टू व्हाट इज टॉर्क ऑफ द प्लैंक, प्लैंक का वेट कितना, फोर्स कितना, 300, डिस्टेंस कितना लेफ्ट हैंड से 1 मीटर क्योंकि प्लैंक का वेट सेंटर से एक्ट होगा, प्लस बॉय का वेट कितना 500 और बॉय का डिस्टेंस कितना 1 प्लस एक्स। नाउ इफ यू सॉल्व दिस, 1000 minus 300 इक्वल टू 500 इंटू 1 प्लस एक्स, सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 1 प्लस एक्स इक्वल टू 700 अपॉन 500, 500 अपॉन 700, ठीक है। So you just have to solve this, x equal to 7 by 5 minus 1 and that is 2 by 5 and that is 0.4 meter, right? I hope this is clear, okay? So you need not to write, but you should spend few minutes just going through it and make yourself comfortable with the solution. Let's move to next question.
A letter A is prepared from a uniform cardboard with shape and dimension as shown in figure. Locate its center of mass. Very good question. इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो पहली बात ये है, क्योंकि ये ई लेटर जो है इट इज मेड प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म कार्डबोर्ड, तो यूनिफॉर्म कार्डबोर्ड से बना है, तो जितने भी पीसेस हमने किए हैं, कितने पीसेस किए हैं 10, तो हमने ई शेप के 10 पार्ट्स कर लिए। हर एक पार्ट का मास सेम होगा। मास सेम क्यों होगा? बिकॉज इट इज मेड अप फ्रॉम द सेम कार्डबोर्ड एंड दैट कार्डबोर्ड वाज यूनिफॉर्म कार्डबोर्ड। यूनिफॉर्म मतलब मास एट एवरी पार्ट इज द सेम, हर एक मीटर स्क्वायर में सेम मास होगा। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आपको एक ओरिजिन सिलेक्ट करना पड़ता है। So you have to decide a origin. So let us fix that origin at this particular point. तो जो फिफ्थ नंबर का पोर्शन है, हमने वहां पे ओरिजिन को फिक्स कर दिया। ओके, सो लेट द ओरिजिन बी एट fifth portion of the cardboard, right? Okay. अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको याद है, आपको याद होगा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। हमने पोजीशन वेक्टर्स भी लिखा था, हमने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के सेंटर ऑफ मास भी लिखे थे। तो व्हाट वी विल डू इज, हम इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो ई शेप का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में पहले स्प्लिट कर लेंगे। तो सबसे पहले आई विल बी टेकिंग this particular portion over here, मतलब ये जो हमारे पास 1 2 3 पोर्शन है वो लेंगे। ओके, तो 1 2 और 3 जो पोर्शन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज दे आर मेड अप फ्रॉम सेम कार्डबोर्ड, हर एक का मास m है, इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m, तो हर एक का मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास। और मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर सिमेट्रिकल shapes, for symmetrical bodies like sphere का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स पे होता है, मतलब स्क्वायर के केस में स्क्वायर के सेंटर पे होता है। तो ये जो मास है 1 2 और 3 पार्ट का, ये सारे का सारा m, ये दिस इज फोकस्ड, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड at centers of each of this, right? करेक्ट, मतलब पॉइंट 1 पे m मास, पॉइंट 2 पे m मास एंड पॉइंट 3 पे भी m मास आ गया। तो ओवरऑल मैंने और एक चीज आपको बताई थी, दैट अगर मेरे पास एक बॉल है, दूसरा बॉल एंड तीसरा बॉल, तीनों का मास अगर m है, तो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर में आएगा। किसके सेंटर में आएगा? मास डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में आएगा। यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर मतलब सेकेंड बॉल का सेंटर। जिसको अभी भी सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, लेट मी टेल यू। सेंटर ऑफ मास वाज दैट पॉइंट at which the whole mass of the body was supposed to be concentrated. स्फीयर के केस में या डिस्क के केस में ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास। गुड। फिर मैंने बताया था अगर दो पॉइंट मासेस है, याद करो, इसका r1 था पोजीशन वेक्टर, इसका r2 था पोजीशन वेक्टर, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, बराबर सेंटर में आएगा, 1 और 2 के सेंटर में आएगा। ओके, देन if I have 3 square joined together, उसका सेंटर ऑफ मास
सेंटर के स्क्वायर के सेंटर पे आएगा। या फिर और इजी समझना है तो आप बोल सकते हो कि मैं इसको स्क्वायर मानूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा ये एक ही रॉड है, दिस इज सिंगल रॉड, व्हाई शुड आई बी पुटिंग पार्टीशन लाइक दिस, डालो ही मतलब, डोंट पुट पार्टीशन। मैंने क्या बताया आपको, इफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, रेक्टेंगल केस में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वेयर द टू डायगोनल्स मीट, मतलब यहाँ पे तो 1, 2 और 3 पोर्शन का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आएगा। और टोटल मास कितना है इस रॉड का, 3m, क्योंकि m प्लस m प्लस m 3m, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आएगा, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आएगा at the center of second portion. Good. Now how do you find out coordinates? इसलिए that's why it is important the choice of origin. मैंने origin इसको माना है, ये हो गया आपका x axis और ये हो गया आपका y axis, something like this, right? So this is y axis and you have shown x axis. So now the question arises कि ये जो 1, 2 और 3 हमने लिया था, m1, m2 एंड m3, इसका सेंटर ऑफ मास तो लोकेट हो गया अब, राइट? और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, हाउ डू यू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, दिख रहा है ना, यू कैन सी इफ 5 इज द ओरिजिन और ये 6 है, तो इसका मतलब x एक्सिस की वैल्यू 1 हो गई और y एक्सिस की वैल्यू 2 हो गई, so 1 and 2, so this particular point will have coordinates of 1, 2, x एक्सिस में एक स्टेप, y एक्सिस में 2 स्टेप, 1, 2। सिमिलरली नीचे जो 8, 9, 10 है, 8, 9, 10 के लिए भी हम लोग सेम आइडिया अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो फॉर 8 and 9 and 10 I can say 8, 9 और 10 इन सब का मास भी m m m है, और हम लोग इस m m m को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, और ये 8, 9 और 10 का जो सेंटर होगा, 8, 9 और 10 का जो सेंटर होगा वो भी 9 पे आएगा। मतलब व्हाट वी विल सी इज दैट ओवरऑल 3m मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट पॉइंट 9। फिर 9 के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, वापस सेम, x की वैल्यू 1 because it's one step away in x direction, and y की वैल्यू 2 because it is 2 step away but in negative direction। तो ये जो 9 जो आप सेंटर पे बता रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, -2, राइट? 1, -2, मतलब 1, 2, 3, 8, 9, 10 का काम हो गया। अब क्या बचा, 6 और 4, 5, 7, तो 6 का तो टेंशन लेना नहीं है, 6 का मास कितना, m, और 6, तो आई विल जस्ट शो इट हियर, ये जो बीच में 6 था यहाँ पे, इसका मास m है, और ये ऑलरेडी ओरिजिन से एक स्टेप दूर है ऑन x एक्सिस। ओके, तो ओवरऑल व्हाट आई कैन राइट फॉर दिस इज, इसका मास, टोटल मास m, और इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1, 0। Why 1, 0? Because that particular portion 6 is sitting exactly on the x-axis, मतलब y coordinate 0 है, राइट? तो ऊपर का 1, 2, 3 उसका टोटल मास 3m, सेंटर ऑफ मास 1, 2। नीचे का 8, 9, 10 टोटल मास 3m, उसका सेंटर ऑफ मास 1, -2। 6 का, देखो 6 का बेसिकली टोटल मास m एंड सेंटर ऑफ मास 1, 0। बचा क्या, बचा आपका ये पैच, मतलब आपका बच गया 4,
5 and 6, ये तो नथिंग, इसका मास m, इसका मास m, इसका m, और टोटल मास 3m, और मैंने ऑलरेडी बताया है क्योंकि सिमेट्रिकल है तो जहाँ पे 5 बताया है एग्जैक्टली वहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा, और सेंटर ऑफ मास या तो ओरिजिन ही है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 0 पे 3m मास है, राइट। ओके, तो व्हाट यू हैव फाउंड सो फार, आपको क्या मिला सो फार? आपके पास ओरिजिन पे 3m का मास है, आपके पास ये ओरिजिन है, ओके। उसके बाद आपके पास at 1 0 you have mass m, then you have mass of 3m at 1 2, and then you have mass of 3m at 1 minus 2, सब मॉडिफाई सिंप्लीफाई करने के बाद। बट रिमेंबर what you should know, what to remember, what to observe. Observation will make your life easy, I mean in terms of physics of course, not life like life. But if you see one thing, if you see this particular thing over here, ये सारे के सारे they are again sitting on a straight line. छोड़ो, I can just use a pen and draw. ये सारे के सारे एक ही लाइन पे है। How do you know? Look at the x coordinates 1 1 1 तीनों केस में। इसका मतलब ये तीनों भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये 3m था नीचे, इसका मतलब ये होता है कि ये 3m m और 3m, इसका सेंटर ऑफ मास भी ये आएगा, राइट। इसका सेंटर ऑफ मास भी ये आएगा विथ टोटल मास ऑफ 3 + 3 + m, मतलब 7m। तो फाइनली आपको क्या मिला? फाइनली आपको मिला एक 3m मास सिटिंग एट 0, 0, एक 7m मास सिटिंग एट 1, 0, मतलब दीज आर ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे आपको बोला लोकेटेड सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास तो एक्स एक्सिस पे ही आएगा, वाई एक्सिस तो नलीफाई हो गया यहाँ पे। हाउ डू यू फाइंड आउट एक्स सेंटर ऑफ मास? याद है आपको, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. So what is m1 here? 3m. What is x1 here? 0. What is m2? 7m. And what is x2? That is 1 upon 3m plus 7m. मतलब ये आ गया आपका 7m upon 10m, मतलब 7/10 0.7। तो सेंटर ऑफ मास is at x equal to 0.7 and y equal to 0. तो ये मिल गया आपको सेंटर ऑफ मास, राइट। गुड, ओके, सो लेट अस डू इट अगेन। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द मास ऑफ होल बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, राइट। सबसे पहली चीज, हमारे पास एक लेटर ई था विच इज मेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म कार्डबोर्ड। यूनिफॉर्म कार्डबोर्ड मतलब उस कार्डबोर्ड में हर एक जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मतलब कार्डबोर्ड में अगर मैं कहीं पे भी 2 इक्वल एरिया लेता हूं तो उन 2 इक्वल एरिया में इक्वल मास होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। इसका मतलब अगर मैं इस ई शेप लेटर को अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं तो हर एक पार्ट का मास m होगा, राइट। दैट इज द आइडिया, ओके। हमको इस ई शेप लेटर का हम लोगों को फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले द चॉइस ऑफ ओरिजिन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहीं से तो ओरिजिन से मेजर होगा ना, तो चॉइस ऑफ ओरिजिन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। गुड, वेयर यू फाइंड कंफ्यूजन इज
यहाँ पे मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको नंबर 1 2 3 4 5 दिया है। तो जब मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगा तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, so it generates a lot of confusion. So what I can do is, for simplicity, instead of writing 1 2 3, I will write A B C D। ई नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि ई लेटर है ऑलरेडी, तो लिख सकते हो इफ यू वांट, लेट अस से ई एफ, ये हो गया जी एच आई एंड जे। तो मैंने इस ई लेटर को डिवाइड कर दिया। तो जब हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीस वाइज मतलब इस ई लेटर के 4 पीसेस कर लेंगे और उन 4 पीसेस का अलग अलग का सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। ऑलराइट, बट बिफोर दैट वी नीड टू first we need to do what? First we need to define a origin, we need to set a origin। जब तक हम origin set नहीं करते तब तक it is not good to proceed with finding out center of mass। तो सबसे पहला काम मैंने origin को set करना है और origin मैंने मान लिया कि the origin is at point E according to this diagram, and this is how it is going। ओके, तो ये आ गया एक्स एक्सिस, थोड़ा सा बड़ा लेटर यूज कर लेता हूँ अभी, ये हो गया वाई एक्सिस आपका, राइट। सो हियर यू हैव दिस एज एक्स एक्सिस, दिस एज वाई एक्सिस, राइट। और ओवरऑल आपको लेंथ दिया हुआ है 5 और यहाँ पे आपको विड्थ दिया हुआ है 3। तो अगर ये ओरिजिन है 0 तो ये आ गया 1, राइट। ओके, तो एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 1,0। So what I will do is, instead of making खिचड़ी over here और mess over here, हम लोग पीस वाइज देख लेते हैं। तो पहला पोर्शन जो मैं निकालूंगा, पहला पोर्शन मैं इतना ले लूंगा। पहले हम ये ए बी सी का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेंगे। इसका इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे, मुझे पता है क्योंकि ये यूनिफॉर्म कार्डबोर्ड है। इसका मास m, इसका मास m और इसका मास m। ए का मास m, बी का मास m, सी का मास m, total mass 3m। According to the definition of center of mass is a point where total mass of the body is supposed to be concentrated। So if I am talking about A, B and C section, if I am talking about A, B and C section, तो उस A, B और C section का center of mass होगा right here where point B was located। Okay, where point B was located, and now the total mass of this body will be 3m, because that is a definition of center of mass where total mass of the body is supposed to be concentrated। तो हम पहले ए बी सी इस पैच को हमने अलग किया है, तो center of mass will be at the center of this ABC, which is B itself, 3m। What are the coordinates of B? I know coordinate of B, अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, what I can see is B is sitting at x equal to 1, right, and y equal to 2। कैसे, ये दिया ही है, टोटल 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है, और तो ये हो गया 1 हियर और ये हो गया 2 यहाँ पे। तो डायग्राम सही है, राइट। तो पहले हमने इसका निकाल लिया। सिमिलरली मैं नीचे जो एच आई जे है, मैं एच आई जे के लिए भी ऐसा कर सकता हूँ। तो आई कैन डू सेम फॉर एच आई जे, और एच आई जे के केस में सेंटर ऑफ मास विल बी एट आई एंड द मास विल बी 3m, क्योंकि हर एक पोर्शन का मास m था, तो टोटल मास 3m है। वेयर इज आई सिटिंग, x इक्वल टू 1,
एंड y इक्वल टू -2, ये -1 और ये आ गया आपका -2, तो मिल गया, राइट, करेक्ट, ये हो गया। अब लेट अस टॉक अबाउट जस्ट f। तो जो f पोर्शन है, f पोर्शन जो है लाइक दिस, अभी f का तो टेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि f उसका सेंटर ऑफ मास f, उसका मास सिर्फ m, क्योंकि एक ही तो पीस है, और उसका ओरिजिन e से डिस्टेंस कितना 1, और y एक्सिस 0, y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि वो है ही x एक्सिस पे, तो राइट, करेक्ट। अब लास्ट चीज क्या बची? लास्ट चीज आपकी बच गई, दैट इज DEG। So last portion that was remaining, I'll put it over here, something like this, right? तो ये DEG जो है, इसका सेंटर ऑफ मास E पे आएगा, क्योंकि DEG के सेंटर में E है, टोटल मास 3 है, बराबर, और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट 0 0, क्योंकि E इटसेल्फ हमने ओरिजिन लेके रखा है। गुड, राइट। So this should be clear. This should be extremely clear. Okay, right. The only mistake that I made here is मैंने ये f को थोड़ा सा shifted दिखाया है. I should have shown it somewhere else. तो ठीक है, that is fine. Let me check if I can move. Yes, I can move. Okay. Okay. Very good. All right. तो यहाँ पे आपका आ गया f. तो now what we see is ऊपर का 3m, बीच का m और नीचे का 3m, they are all along the same line, that is x equal to 1, and x equal to 1 is a line parallel to y axis, right? तो अब मैं नाम दे सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ पैच नंबर 1, पैच 2, पैच 3 एंड पैच 4. Now what we can say is this patch 1, 3, 1, 2 and 3, they are along the same line. Okay, so in the next step what we will do is, ये जो पैच नंबर 4 है, इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने जैसा था वैसा रख दिया। ये E था और E ओरिजिन है और इसका टोटल मास 3m है, राइट। बट 1, 2 और 3, ये 3 पैच का टोटल मास कितना? 7, बराबर, 7m, 3m ऊपर 3m नीचे और बीच में m। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? E पे, F पे, मतलब सेंटर ऑफ मास विल गो समवेयर ओवर हियर एट F. Center of mass is always at the center. Center of mass is always at the center. ये बताना चाहिए. Okay, good, right. So overall what is the situation? Overall situation ऐसा है कि हमारे पास E पे कितना मास है? 3m. तो E पे हमारे पास कितना मास है? 3m. F पे कितना मास है? 7m, और F के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 0, राइट। पैच 1, पैच 2, पैच 3 को मिला के 7m सिटिंग एट 1, 0, तो हमको मिल गया x1 0, y1 0, x2 1, y2 0। जब y1 y2 0 ही है तो फाइनल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? x एक्सिस पे, राइट। ओके, therefore final center of mass will be xcm is equal to m1, this is m1 for us, x1, plus m2, this is m2 for us, x2,
अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि ये डेफिनेशन ही था सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट का। मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल के फायदा नहीं, जीरो ही आएगा वो। दैट इज इक्वल टू, यू कैन राइट डाउन इजीली, m1 की वैल्यू आपको पता है, m1 की वैल्यू 3m है, x1 0 है, m2 की वैल्यू 7m है, x2 1 है, नीचे 3m प्लस 7m है, मतलब टोटल हमारे पास आ गया 7m अपॉन 10m, मतलब 0.7। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0.7 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। गुड, राइट। तो अब जो कुछ मैंने बताया वो हम लोग लिख लेंगे। ओके, राइट। So we have to write everything that I have just explained. So yeah, so what we did was divide the letter E into 10 equal parts, A, B, C, D up to J, right? Okay. Each of this part, each of these parts has a mass m। क्यों? क्योंकि बोला ये यूनिफॉर्म कार्डबोर्ड है। गुड, राइट। आगे what we can say now, to find out center of mass, to find center of mass, consider a, consider part A, B and C, part A, B and C. The total mass of A, B and C is 3m, and its center of mass, is at point B, which is located at, कहाँ पे है पॉइंट बी, विच इज लोकेटेड एट 1,2, मैंने ऑलरेडी बताया है। सिमिलरली, सॉरी फॉर माय प्रेजेंटेशन फॉर दिस न्यूमेरिकल, क्योंकि आई एम सॉरी, समझ लेना, फॉर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, समटाइम इट जस्ट गोज completely out of structure. Similarly, center of mass of, नीचे क्या लिया था हमने, H, I and J is at I, order coordinates of I 1 minus 2, with a total mass of 3m, with a total mass of 3m, right? Okay. Also, a mass m is sitting at point F, which is 1,0, right? Similarly, for DEG, center of mass is at E 0, 0। हाँ, पहले लिख देना यहाँ पे, assume E is the origin, right?
with a mass of 3m. ओके राइट। तो ये जो ABC था इसको बोल दिया था मैंने पैच नंबर 1। ये जो HIJ था इसको हमने बोला था पैच नंबर 2। पैच 2, पोर्शन 2, पार्ट 2, डिवीजन 2, जो भी वर्ड यूज करना है विच फिट्स इन प्रॉपर इन इंग्लिश वो यूज कर लेना। पैच 3 राइट। नाउ द सेंटर ऑफ मास of patch 1, 2 and 3 lies at point E, which is 10 with a total mass 7m, right? Then finally you have to write this particular equation for center of mass. Finally, right? आपको मेरा सोल्यूशन फॉलो नहीं करना, नो इश्यूज, बट आई कैन टेल यू कि आप टेक्स्ट बुक का कर सकते हो, आई डोंट माइंड, वो भी चलेगा, पर बहुत ज़्यादा है बाय सिमेट्री, बाय दिस एंड बाय दैट, आई डोंट लाइक द वे दे राइट, सो दैट इज इट।